स्टार्ट करूं? A very good morning to everybody present over here. This is Shambhavi Mishra. I welcome you all to the fifth lecture of the series, which aims to encourage aspiring scientists and researchers, organized by Physics Students Academic Forum under the coordination and guidance of respected Professor Neelam Srivastava ma'am. We all dream and aspire, but when it comes to executing and achieving what we want, a very few of us make it to the end. There are many factors behind this, but one of the major ones is the lack of proper guidance and awareness about various opportunities and paths that should be taken. So those of you who dream of becoming a scientist need not worry. Today we have with us alumnus of MMB BHU, Ms. Ritika Tiwari and Ms. Shriya Sagatia, who are going to show us a roadmap about how to apply for research internships or fellowships at UG level so that we can have a stronger base. They have pursued their BSc honors in physics and hold a research fellowship named Introductory Summer School in Astronomy and Astrophysics, offered by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Ayuka, Pune. So they will also be telling us about their experiences and perspective, and also a little bit about what they have learned all that while. But before that, let us pay a virtual tribute to the founder of BHU and a great educator, Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji. I request Ritika Tiwari to please start her presentation. Hello, thank you, Shreya, for uh, introducing me. First of all, before going to this lecture series, I would like to thank Dr. Neelam Srivastava ma'am for providing me such opportunity. Ma'am, I'm very grateful for this. So, so today I will introduce you all one such interesting field, that is astronomy and astrophysics. Now I start. So, in our school time, we often confuse about the difference in astronomy, astrophysics, and cosmology. Uh, we don't know what is exactly an astronomy, an astrophysics, or a cosmology. Uh, Astronomy, observation of celestial bodies, and astrophysics, machinery of celestial bodies, cosmology, evolution of the universe as whole. Universe, the study of everything in universe beyond the Earth's atmosphere, that includes objects we can see with our naked eyes like sun and moon, the planet and stars, and also includes the object we can't see uh, and with naked eye, but with the help of telescope we can see, like galaxies and nebulas. This all study of universe beyond Earth atmosphere, it is all included in astronomy. Astrophysics is also in astronomy. Astrobiology is also in astronomy. Astrology is also in astronomy, and cosmology is also in astronomy. Everything in universe study, it is all about astronomy. Now, what is astrophysics? After the invention of telescope, it comes. This is basically machinery observation. With the help of telescope,
जो भी चीजें हम स्टडी करते हैं स्टार प्लैनेट्स के बर्थ को लेकर के, उसके स्ट्रक्चर्स को लेकर के, इवोल्यूशन को लेकर के टेलीस्कोप की हेल्प से जो भी स्टडी करते हैं, जो भी मैथमेटिक्स होती है, वो एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट होती है. And the other part is cosmology. Cosmology is also a branch of astronomy, and we deal with the study of universe as a whole. So it is a large scale observation. This is ISA course structure. I'm not gone in detail, but this is course structure. Uh, Introduction to Astronomy and Astrophysics, Galaxy Cluster, Solar Physics, Stellar Structure, Gravitational Lensing, Radio Astronomy, Cosmology, Supermassive Black Hole, Structure Formation of Universe, and here two experiment and workshop, Stellarium software, and second radio astronomy experiment. My experience in astronomy and astrophysics. एज अ स्टूडेंट मैं बताना चाहती हूँ कि ये अचानक से मतलब दिमाग में कैसे आया कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ही करना है. तो अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के लिए इंटरेस्टेड होंगे, और जो नहीं भी होंगे वो शायद आज के लेक्चर के बाद समझ रहे होंगे कि आना क्यों है इसमें. तो सबसे पहला पार्ट था जो इसमें फील्ड में कुछ आगे बढ़ने का, वो था स्टार गेजिंग. मुझे स्टार गेजिंग करना बचपन से ही बहुत पसंद था, और डीप स्काई में देखना, स्टार्स को पहचानना, कॉन्स्टलेशंस को देखना, ये सब करना बहुत पसंद था मुझे बचपन से ही. तो स्टार गेजिंग के लिए अगर आप चाहें, जो भी इंटरेस्टेड हैं, तो दे कैन डाउनलोड द ऐप विच इज यूजुअली ऑन अवेलेबल प्ले स्टोर, that is Sky Map app. And second, if want to download any software which is Stellarium software, here you can explore in the universe. Second, attending some workshop. IIT में कई सारे वर्कशॉप होते थे एस्ट्रोनॉमी को लेकर के. वहाँ पे मैंने कई सारे वर्कशॉप भी अटेंड किए थे, और एक प्रोजेक्ट था सोलर फिजिक्स पे, Pseudosocks as an energy source for solar active corona. उस पे रिसर्च पे भी काम किया था मैंने. एंड द लास्ट समर स्कूल एट आयुका, जो आज का टॉपिक है मेरा. बाकी एक मीम बनाया था मैंने, ये यहाँ पे मैंने मीम बनाया था एक, जुपिटर की पिक्चर ले रही है और साइड में मार्स है. तो ये एक मीम है कि मार्स जो है वो सबसे हैबिचुअल प्लैनेट है, बट उसको छोड़ के मैं जुपिटर की फोटो ले रही. तो ये मेरा ड्रीम प्लैनेट है जुपिटर. ISA classes, a journey to the universe. This is a human eye blood cell. This is pupil and retina. This is human eye. This is a girl on Earth. Earth and moon. Kepler belt. Now zoom out. Inner Earth cloud. Outer Earth cloud. Neighboring stars. Proxima Centauri, and this is our sun, solar system. Local interstellar cloud. Now zoom out. Local bubble. Spiral arm, which is Orion spiral arm, in which our solar system exists in Milky Way. This is our Milky Way. Now all zoom. Galaxy neighboring. This one is Andromeda, in neighbor of Milky Way. This is local galaxy group in which our Milky Way exists. Local supercluster. Now zoom out. Cosmic wave. Now further zoom out. This is our uniform universe. Night sky through telescope. Now, if you are on Earth and watch sky, you can see with your naked eye stars, planets. Jupiter. You can see Jupiter,
Saturn with naked eyes, but not the ring of Saturn. To see this ring, you can use any small telescope. एंड बट अगर आपको एटमॉस्फेयर के बाहर जो नेबुला गैलेक्सी या ये सारी चीजें देखनी है तो वो अर्थ के टेलीस्कोप से देखने में इजी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जो भी लाइट बहुत दूर से आ रही है वो लाइट एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अर्थ तक रीच नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप जो नॉर्मल टेलीस्कोप होते हैं अर्थ पे वो उसे डिटेक्ट करने में उसकी इमेज के एनालिसिस करने में हेल्पफुल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हबल टेलीस्कोप को इन्वेंट किया गया, जिसका जो ऑर्बिट होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होता है, जिसकी वजह से वहां पे पिक्चर को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। तो हबल टेलीस्कोप का जो भी इमेज होता है वो डीप फील्ड होता है, मीन्स छोटे से पार्ट स्काई के पार्ट को बहुत डीपली एनालाइज किया जा सकता है, मतलब वहाँ की लाइट की विजिबिलिटी अच्छी होती है। और तो स्काई स्काई में दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड दूसरा फजी ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट में लगभग स्टार्स होते हैं या प्लैनेट्स होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फजी ऑब्जेक्ट्स नेबुलाइज भी हो सकते हैं और गैलेक्सीज भी कई सारी हो सकती हैं और सुपरनोवा एक्सप्लोजन और कई सारी चीजें हो सकती हैं। मेजरमेंट एंड एस्ट्रोनॉमी, हम इधर कहीं भी अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं अगर अर्थ पर, तो वो अक्सर किलोमीटर्स या मीटर्स ऐसे मेजर करते हैं, बट जो भी हम एस्ट्रोनॉमी में मेजरमेंट लेते हैं वो मेजरमेंट जो भी होता है वो एंगुलर साइज का होता है। ये इधर पिक्चर में दिख रहा होगा कि एंगुलर साइज ऑफ द मून इज अबाउट 0.5 डिग्री, दिस इज एंगुलर साइज। आई वांट टू शो, दिस इज माय हैंड, इफ आई अगर इसे मैं आसमान में ले जाती हूँ और ये इस टो के अराउंड दो स्टार्स हैं, तो वो अगर दो स्टार्स हैं तो इसके बीच का जो भी एंगल बनेगा वो 1 डिग्री का होगा, मतलब अगर इस फिंगर के बीच में दो स्टार होंगे तो वो पक्का 1 डिग्री के अपार्ट होंगे, उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो 1 डिग्री उसका एंगुलर साइज होगा। बाकी ये जो पाम के बीच का डिफरेंस होता है वो 10 डिग्री का होता है। बेटा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है रितिका, इस समय आपका मोबाइल ब्लैंक है, ब्लैक है। मैम मैम अब हेलो अभी कुछ देख नहीं पा रहे हैं हम, ब्लैक सा है, खाली ऊपर लिखा हुआ, कुछ भी नहीं आ रहा है। नाउ हाँ अच्छा अच्छा, तुम्हारा मोबाइल उसमें तुम दिखा रहे हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सोची प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हो। ठीक है, यस मैम। तो प्रेजेंटेशन बंद करके उसको दिखाओ, वरना वो ऊपर बहुत छोटा दिख रहा है। प्रेजेंटेशन स्टॉप करके फिर वीडियो से दिखाओ। हाँ हाँ, नाउ इट इज ओके। तो फिर ये जो हैंड है उस ये जो टो ये जो थंब है इसके अराउंड अगर 2 स्टार्स लेंगे तो अगर स्काई पर रखें और इनके दो के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों स्टार के बीच में, वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग जनरली फिंगर्स का हेल्प करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। तो इनके अराउंड जो भी डिग्रीज होंगे वो 1 डिग्री के होते हैं, लगभग मून मून का लगभग इतना ही होता है एनुलर साइज। बाकी ये जो पाम के अराउंड ये दोनों के अराउंड जो भी एंगल बनता है वो 4 डिग्री का बनता है, तो ये जो होंगे वो 4 डिग्री पे होंगे, नहीं सॉरी 10 डिग्री पे। और एक और मेजरमेंट होता है, ये ये अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर एंगुलर साइज निकाले इनके बीच का डिस्टेंस का तो ये 1 डिग्री होगा, ये इन दोनों के बीच का 4 डिग्री होगा और इनके बीच का डिफरेंस 6 डिग्री पे होगा।
तो ये स्काई में हम लोग 2 स्टार के बीच में एंगुलर साइज देखने के लिए हेल्प लेते हैं। Yes, Didi. Okay. So types of galaxy, the tuning fork diagram. There are 2 types of galaxies mainly. One is spiral and second is elliptical. The 75% of our galaxy is a spiral one and other is elliptical. But spiral galaxy is newer and elliptical galaxy is older. Galaxy interact, collide, and harass each other. The tuning fork galaxy is like this straight handle of the tuning fork. There is elliptical galaxy, which is E0, E4, E7, increasing eccentricity, and the arm, there are 2 arm of the tuning fork. One is spiral galaxy and other is Bate spiral galaxy. Spiral galaxy, these are new galaxies. यहाँ पे जो भी हो रहा है, स्टार्स जो भी मिल रहे हैं वो सारे नए होते हैं। मतलब अभी अपने बर्थ के स्टेज में है, अभी ये सब नए नए बन रहे हैं। जबकि इलेप्टिकल गैलेक्सी जो होती है वो सारे स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, और वो उनका जो एंगुलर मोमेंटम बहुत समय से चलते चलते वो एलिप्टिकल में चेंज हो चुका है। और जो स्पाइरल गैलेक्सीज होते हैं उनका जो भी रोटेशन होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो भी रोटेशन होता है वो एक डायरेक्शन में ही होता है। तो ये स्पाइरल गैलेक्सीज होते हैं। और जो बेट स्पाइरल गैलेक्सीज होते हैं वो उनके सेंटर पे जो होता है वो कोर जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, वो रॉड की तरह होता है। और ये 2 डिफरेंस होता है स्पाइरल में, स्पाइरल गैलेक्सी और बेट स्पाइरल गैलेक्सी में। बाकी जो एक ट्यूनिंग फॉर्क का एक अलग पार्ट है वो है इरेगुलर गैलेक्सी। वो गैलेक्सी होता है वो जो ना इलेप्टिकल भी होता है पूरी तरह से, ना ही स्पाइरल होता है पूरी तरह से, ना बेट स्पाइरल गैलेक्सी होता है। ये जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, और इनका फॉर्मेशन तब होता है जब वो गैलेक्सी का कोई भी इंटरेक्शन होता है, कोलिजन होता है, खराब कर लेते एक दूसरे को, तो ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है कोलिजन की वजह से। तो इस टाइप के जो भी गैलेक्सीज बनते हैं वो ऐसे ही कोलिजन की वजह से बने रहते हैं। बाकी हमारा जो मिल्की वे है उसके जो पास वाली जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये दोनों खुद अभी अपने इंटरेक्शन में चल रहे हैं। कुछ समय बाद हो सकता है कि वो कोलाइड कर जाएं, बट अपने सोलर सिस्टम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। Our galaxy, the Milky Way. Milky Way is also a spiral galaxy. The Milky Way consists of 3 parts. First disk, second arm, and third nucleus. The spiral arm, distribution of stars, gas and dust. Particular जो भी इनके आर्म्स में जो भी चीजें होती हैं वो स्टार्स होती हैं, या तो डस्ट होती है या गैस होती है, ये होती हैं। रोटेशन विल ऑल ऑब्जेक्ट सर्कलिंग इन सेम डायरेक्शन। जो भी पार्ट्स इसमें, so this is our galaxy, the Milky Way. This is spiral one. The Milky Way consists of 3 parts. First disk, second spiral arm, third nucleus. Spiral arm, distribution of stars, gas and dust. जो भी गैलेक्सी का भी जो भी आर्म्स हैं उसमें डस्ट, ज्यादातर डस्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स स्टार्स होते हैं कई सारे, ये सारी चीजें होती हैं। बाकी जो रोटेशन होता है वो ऑब्जेक्ट्स का जो भी स्पाइरल आर्म्स में जो भी रोटेशन होता है वो एक डायरेक्शन में होता है। और डेंसिटी, जो वेरिएशन होता है डेंसिटी का गैलेक्सीज में, वो सेंटर पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आर्म्स की तरफ बढ़ते हैं बाहर की ओर डेंसिटी घटती जाती है। इसकी वजह से सेंटर पे जो होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी होती है ब्लैक होल की, वो प्रोबेबिलिटी जो चांसेस होती है ब्लैक होल के पाए जाने की वो किसी भी गैलेक्सी के सेंटर पे बढ़ जाती है। एंड हमारे जो भी गैलेक्सी है मिल्की वे उसमें सेजिटेरियस ए ब्लैक होल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी गैलेक्सीज में
ऐसा ब्लैक होल हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कि सेंटर के तरफ एक ब्लैक होल होना चाहिए। Solar physics. This is a branch of astrophysics. This is a study of the study of surface of the sun and interior also. This is internal structure of the sun. This is core, and this is convection zone, radiation zone, and this is at the sun's atmosphere, corona. Here you can see the provenance जो होती है वो सन पर एक फायर होता है, जैसे कि कोई आग की लौ होती है ना, उस तरह का प्रोवेनेंस पाया जाता है। आग की अचानक से लपट निकलती है, वो प्रोवेनेंस होते हैं। सन के सरफेस पे ब्लैक स्पॉट पाया जाता है, जिसको सन स्पॉट कहते हैं। यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं बहुत ज्यादा हाई होती है, और यहाँ पे लूप्स बनते हैं, सन स्पॉट्स के अराउंड लूप्स बनते हैं, जिसको कोरोनल लूप कहते हैं। और अपना अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट है, जिसपे दो पोल पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। लेकिन जो सन होता है उस पे जो भी मैग्नेट्स पाए जाते हैं वो कई सारे पोल्स होते हैं उसपे। जी, एक जितने भी छोटा सा डाउट है कि हाँ, सनस्पॉट्स क्यों होता है? सन स्पॉट्स क्यों होता है? क्यों होता है? मतलब आप बोले ना कि सन के बीच में जो काला काला दाग दिखता है, मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं, उसी को हाँ सनस्पॉट्स बोलते हैं। तो हाँ वो क्या शो करता है? प्रेजेंस ऑफ एनी एलिमेंट, मतलब जैसे हाइड्रोजन या हीलियम हाँ, की वजह से? सन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब देखो, अक्सर ये होता है कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट इस पे किया था वो यही बताता है कि जैसे कि कोई भी स्टार होता है, वो उसके सेंटर पे जो होता है कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, और सरफेस तक आते आते डिक्रीज करना चाहिए टेम्परेचर। ऐसा तुमको लगता है ना कि ऐसा होना चाहिए? अंदर कोर का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, पे धीरे धीरे होना चाहिए। लेकिन सन के साथ उल्टा हो जाता है, सन का कोर का टेम्परेचर हाई तो होता है, लेकिन सरफेस से आते आते डिक्रीज करता है, फिर उसका एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली हाई, पता नहीं कैसे हो जाता है। अब यही चीज एक बर्निंग टॉपिक है सोलर फिजिक्स में, कि ऐसा क्यों होता है कि एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर हाई कैसे होता है, ये सोर्स क्या है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक पेपर है, the pseudosox as an energy source for solar active corona। ये कोरोना की हीटिंग आखिर कैसे हो रही है, इसका सोर्स कौन है? तो यही चीज जो शॉक्स शूडो के फॉर्म शूडोसॉक्स निकलते हैं, जो जेट्स होते हैं, जो जो सन का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और हाई होने की वजह से जो भी मेटल्स होते हैं सन पे, वो क्या होते हैं, चार्ज जो भी होते हैं वो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं और प्लाज्मा के स्टेट में आ जाते हैं। तो ये जो भी सनस्पॉट्स होते हैं वो एक तरह से प्लाज्मा ही होते हैं, और इन्हीं का इजेक्शन होता है सनस्पॉट के हेल्प से। तो वो थैंक यू। जो भी हाँ, हेलो, हाँ थी, हेलो। क्लियर हो? हाँ थी, समझ आया, थैंक यू। तो एक सनस्पॉट के बगल में एक दूसरा सनस्पॉट होता है जो कोरोनल लूप को कनेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और ये ही लूप बनाता है सन के सरफेस पे, और प्लाज्मा का इजेक्शन करता है। तो दिस इज कोरोनल लूप, सोलर फिजिक्स। नेक्स्ट, द सन। सन जो होता है वो स्टेबल स्टार है, लेकिन ये स्टेबल कैसे है, ये चीज इसकी मैकेनिज्म क्या है? दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। The sun, like the majority of other stars, it is stable, is neither expanding or not contracting. Such star is said to be in condition of equilibrium. This is hydrostatic equilibrium. What is a hydrostatic equilibrium? The force of gravity pulling inward is balanced by pressure pushing outward. यहाँ पे जो सन का कोर है, इसमें जो हाइड्रोजन हीलियम में लगातार चेंज हो रहा है, इस चेंज की वजह से, इस रिएक्शन की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रेशर की वजह से जो सन का अपना मास है उसकी भी कुछ ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी जो होती है वो अंदर की तरफ सन को पुश करती है। लेकिन
जो सन के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसका भी प्रेशर कुछ बाहर लग रहा है। तो ये प्रेशर अगर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो स्टार जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। बट अभी तो सन अपना स्टेबल है, बट कुछ सालों में देखा जा सकता है कि जो अंदर का जो फ्यूल है वो खत्म होने लगेगा। जब अंदर का फ्यूल खत्म होने लगेगा तो जो अंदर का प्रेशर है वो कम पड़ने लगेगा, और जो डोमिनेट करने लगेगा ग्रेविटी, और उस ग्रेविटी की वजह से स्टार्स जो होते हैं वो कोलैप्स करने लगेंगे। और ऐसा होता है कि जब कोई स्टार कोलैप्स करता है तो वो 3 फॉर्म में चेंज हो जाता है। या तो वो ब्लैक होल में चेंज हो जाए, या तो वो व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाए, या फिर वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में चला जाएगा। तो अपना सन का जो मास है वो तो बहुत कम है, वो एक ब्लैक होल तो नहीं बन सकता, बट एक व्हाइट ड्वार्फ जरूर बन सकता है। और अगर सन 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 के मास का अगर 81 टाइम्स मास हो जाए और वो कोलैप्स करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो एक ब्लैक होल बन जाए। तो ये प्रोसेस होता है। HR डायग्राम, दिस इज हाँ हेलो। चंद्रशेखर लिमिट के अकॉर्डिंग टू 1.44 साइज ही बस बड़ा होना चाहिए ना ब्लैक होल बनने के लिए। हाँ, तो फिर आपने बोला अभी 81 टाइम्स बड़ा होगा तभी ब्लैक होल बनेगा, कैसे? मास मास बेटा मैं एक बात कहूंगी, आप सारे लोग क्वेश्चन नोट करके रखिए, लास्ट में वापस स्लाइड पे जा जा करके पूछते रहिएगा ना। जनरली लेक्चर के बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछते बच्चे ना। रितिका कंटिन्यू। HR diagram. This is a diagram, also called HR diagram. In astronomy, graph in which the absolute magnitude, intrinsic brightness of star plotted against their spectral types, temperature, of great importance to theories of stellar evolution. यहाँ पे यहाँ पे जो ग्राफ है वो 2 एक्सिस पे है। पहला जो एक्सिस वाई एक्सिस को अगर लें तो वो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस है, एंड जो एक्स एक्सिस को अगर हम ले तो वो टेम्परेचर है। एक्स एक्सिस पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और वाई एक्सिस पे ब्राइटनेस बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इधर ये एक ये एक बहुत बड़ा सा एक ग्राफ होगा, एक बड़ा सा, जिसमें अपना सन भी आता है। वो जो लाइन है वो मेन सीक्वेंस स्टार्स होते हैं। ये मेन सीक्वेंस स्टार्स होते हैं वो सन टाइप के स्टार्स होते हैं। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे जिस पे टेम्परेचर हाई होगा और उसका ब्राइटनेस भी हाई होगा, देखो ये सन के आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, और वाई एक्सिस पे भी सन के ऊपर जाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर हाई और ब्राइटनेस भी हाई। तो ये टाइप का जो भी स्टार्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको बिटेल्यूजस कहते हैं। और ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन में भी होता है बिटेल्यूजस, एंड ये इस टाइप के स्टार्स इसमें आते हैं। और मेन सीक्वेंस के नीचे जनरली व्हाइट ड्वार्फ पाए जाते हैं, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है और ब्राइटनेस वो बहुत डीम होते हैं। थैंक यू। Thank you, Shreya Didi and Ritika Didi, for such a great session and resolving our doubts so effortlessly. And thank you, Neela ma'am, for making it possible for us. Thank you so much. थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, Dee. I would Bye. like to see if you have any queries related to your career and anything, you can write it in Telegram or message us directly. Actually, I have made that Telegram group only for this Thank purpose, so that you, your all the seniors and everybody. all the juniors are together. They can ask any question, and you people can share your experience and what to do and what the do's and don'ts. Both you can tell them. So that's why I have created that group, and I hope that the students will get benefited of that of that group. No? It's Okay, a beta. very Bye bye. great. Thank you. Bye bye, Betu.